Good morning, students. This is part 7, alcohol, phenols and ethers of class 12th chemistry. Now we are in the last video. I was discussing about the electrophilic substitution reactions in the phenols, and the first electrophilic substitution reaction which I am going to discuss about the nitration reaction. The reagent which is used for the nitration is the dilute HNO3 in the case of phenols. Fine, and if you use the dilute HNO3, you can see here there is a formation of ortho and the para product of phenol. The orthonitrophenol and the para-nitrophenol. Why? Because phenols are ortho-para directing. Fine, and these ortho-para isomers can be separated by the steam distillation. The orthonitrophenol is steam volatile due to intermolecular hydrogen bonding, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of molecules. तो अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, विद इन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट नाइट्रोफिनॉल में इन बिटवीन अदर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इंट्रा में क्योंकि एसोसिएशन नहीं है मॉलिक्यूल्स का, विद इन द मॉलिक्यूल है, तो ये स्टीम वॉलेटाइल है, बट पैरा इज नॉट अ स्टीम वॉलेटाइल. सो ऑन द बेसिस ऑफ द वॉलेटिलिटी यू कैन सेपरेट आउट द ऑर्थो इन द पैरा नाइट्रोफिनॉल. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द intramolecular hydrogen bonding and this is the intermolecular hydrogen bonding. Now with conc and nitric acid, see we have used here the dilute HNO3, but if you use the concentrated HNO3, in that case what you will get the 3 nitro groups on the ortho and the para positions, which is known as the T and P, which is the trinitrophenol, or the picric acid is the common name. This is very important compound, and the product is commonly known as the picric acid, and the yield of the reaction product is poor. Obviously poor product जो है, product भी poor है यहाँ पे. फाइन, यील्ड जो है रिएक्शन प्रोडक्ट वो पुअर है. नाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल फर्स्ट विद द कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड विच कन्वर्ट्स इट इनटू 2,4-disulfonic एसिड एंड देन विद द कॉन्क नाइट्रिक एसिड टू गेट 2,4,6 नाइट्रोफिनोल्स. कैन यू राइट दिस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व? अब इट इज सेइंग कि बिकॉज कॉन्क HNO3 के साथ यील्ड इज वेरी पुअर, सो इफ वी हैव टू प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड, सो सम अदर वे वी यूज. नाउ इट इज व्हाट वी डू, फर्स्ट वी यूज द कॉन्क H2SO4. तो कॉन्क H2SO4 क्या करता है, 2,4-disulfonic एसिड बना देता है. 2,4-disulfonic बनते ही जैसे आप इसमें कॉन्क HNO3 डालते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाएगा. इट इज सेइंग कैन यू राइट दिस इक्वेशंस ऑफ दिस रिएक्शन? यस, ऑब्वियसली यू कैन राइट इट. सो यू विल राइट दिस रिएक्शंस एंड इफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी फाइन थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर. बट सी दीज रिएक्शंस आर वेरी ईजी, सिंपल सा लिखा है इसमें. आप कॉन्क H2SO4 डालें, 2,4 पे SO3 का ग्रुप लग जाएगा, फिर इसमें कॉन्क HNO3 डाल दे, फिर 2,4,6 पे 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे फिनोल पे. सो इन दिस वे ट्राइनाइट्रोफिनोल आपका बन जाएगा. Now next is the halogenation reaction. On treating phenol with bromine, different reaction products are formed under different experimental conditions. Now you can see here when the reaction is carried out in solvent of low polarity such as chloroform or the CS2. These are the almost non-polar solvents or the low polarity solvents, and at low temperature monochromophenols are formed. अगर आप Br2 ले रहे हैं CS2 में या Br2 ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म में, you can see ortho और para product are forming. Fine. And the usual halogenation of benzene take place in the presence of Lewis acid such as FeBr3, which polarizes the halogen molecule. In case of phenol, the polarization of bromine molecule take place even in the absence of Lewis acid. It is due to the high activating effect of OH attached to the benzene ring. It is saying कि आप यूजुअल हैलोजनेशन जो करते थे बेंजीन की, वो लुइस एसिड की प्रेजेंस में करते थे, लाइक AlCl3, FeCl3, FeBr3, जो हैलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देता था. बट इट इज़ सेइंग जब फिनोल की आप बात कर रहे हैं तो फिनोल की ब्रोमिनेशन अगर आप करेंगे तो उस केस में आपको लुइस एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है. आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली पोलराइज हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज वहाँ पे OH ग्रुप अटैच है जो कि हाईली एक्टिवेटिंग है. तो बेंजीन रिंग को ये हाईली एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी हैलोजन मीन्स जो बेसिकली हाईली एक्टिवेट कर देगा, हाईली एक्टिवेट अगर ये बेंजीन को करता है तो ईजिली आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपके बेंजीन रिंग पे फिनोल पे अटैक कर देगा. फाइन. Now when phenols are treated with the bromine water, 2,4,6 tribromophenols is formed as a white precipitate. तो अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर सिंपल ले, अगर आप फिनोल को डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से ही रिएक्ट करा दें विदाउट एडिंग एनी कैटलिस्ट, इन दैट केस तीनों ही पोजीशन पे आपके ब्रोमीन्स क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे. अब यहाँ पे आपको कुछ एसिड उसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपने सीधा ब्रोमीन वाटर डाल दिया और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आपका प्रोडक्ट बन गया. नाउ नेक्स्ट इज़ द कॉल्बिस रिएक्शन. कॉल्बिस रिएक्शन अगर हम देखें तो कॉल्बिस रिएक्शन में इट इज सेइंग कि फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. कि जो फिनॉक्साइड आयन है जो फिनोल से बनेगा, अगर आप NaOH डाल दें फिनॉक्साइड में तो फिनॉक्साइड आयन बन गया. दिस इज अ सॉल्ट बिकॉज NaOH इज एन बेस, OH इज एंड फिनोल इज एन एसिड. तो जो फिनॉक्साइड आयन है ये और भी ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जाएगा विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है,
एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका फिनोक्साइड आयन जो है एक स्ट्रॉन्गर और मोर रिएक्टिव है, एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा और उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे आपको और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये CO2 पार्ट यहाँ पे बेसिकली यहाँ लग के आपको COH दे देगा और H पॉजिटिव से आपका H आ जाएगा ONA की जगह। नाउ नेक्स्ट इज़ द रीमन टीमन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। पहले हमने कॉल्बे पढ़ी, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी। नाउ दिस इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अगर आप रीमन टीमन में देखें तो आप फिनोल को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो फिनोल को अगर आप क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो आप देखें आपका NaOH है तो OH की जगह ONA लग जाएगा और CHCl3 आपके यहाँ पे CHCl2 का प्रोडक्ट बना देगा। फर्दर इफ़ यू ऐड दी NaOH पार्ट तो आपका CHCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, और हाइड्रोलिसिस करते ही Na पॉजिटिव की जगह H आ जाएगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइल्डिहाइड। तो कॉल्बेज से आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल रही है और रीमन से आपको सैलिसाइल्डिहाइड मिल रही है। फाइन, नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द जिंक डस्ट। अब ये फिनोल है और यहाँ पे आप जिंक ले रहे हैं एज अ मेटल और जिंक डस्ट यहाँ पे बोल दिया इन्होंने, क्रस्ट मेटल हमने लिया है। तो फिनोल जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन शो करेगा और ये OH रिमूव हो जाएगा, मीन जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिनोल रिड्यूस हो जाएगा। जिंक से बनेगा जिंक ऑक्साइड और फिनोल से बनेगा बेंजीन। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। नाउ इट इज सेइंग विद क्रोमिक एसिड। अगर आप क्रोमिक एसिड डाल दें फिनोल में तो कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बनेगा जिसे हम बेंजोकीटोन बोलते हैं। दिस इज द कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। यहाँ भी कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है, बट वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो इसको हम बेंजोकिनोन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग द quinones. Fine, and next it is saying now this reaction is basically the Colbase reaction. This is the Colbase reaction, OH NaOH के साथ, then in the presence of CO2 and hydrolysis will give you the salicylic acid. Now next is the ether. अब पहले हमने अल्कोहल फिनोल्स के बारे में पढ़ा. Now the next part is the ethers. Now how will you prepare the ether? The first method of preparation of ether is what? Dehydration of alcohols. हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्किन बनाया था. अब इसकी डिहाइड्रेशन से हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे. देखो मैंने पहले बोला था इस रिएक्शन के टाइम पे कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं यू हैव टू यूज़ द सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड. फाइन, एंड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप 443 टेम्परेचर कंडीशन देंगे तो आपको एल्किन मिलेगा, लेकिन अगर आप 413 देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा. तो अगर 443 टेम्परेचर कंडीशन दे रहे हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है. So ethanol is basically dehydrated to ethene in the presence of sulfuric acid as 443, and at 413 ethoxyethane is the main product. And it is saying the diethyl ether has been used widely as an inhalation anesthetic, but due to its slow effect as an unpleasant recovery period, it has been replaced as an anesthetic by other compounds. Now the formation, see now next is the mechanism of the formation of ether. The formation of ether is a nucleophilic biomolecular reaction. अब ये कैसी reaction है? This is this SN2 reaction involving the attack of alcohol molecule on the protonated alcohol. Now you can see here there is a phenol product. Sorry, this is the alcohol and H ion is there. So this lone pair of oxygen are basically attacking on the H ion. So यहाँ फर्स्ट स्टेप तो दोनों ही मैकेनिज्म में सेम है. जब हमने एल्किन जब हमने देखा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जहाँ हमें इथीन मिल रहा था या एल्किन मिल रहा था, तो फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम है. बट देयर इज अ चेंज इन द सेकंड स्टेप. वहाँ सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था, बट यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्दर आपका जो अल्कोहल है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, it will attack on the carbon center and this OH2O will leave. So you can see there is a formation of this kind of compound. Now oxygen bearing the positive charge, this H will leave and this is the formation of ether now. Fine. And acidic dehydration of alcohols to give an alkene is also associated with the substitution reaction to give an ether. Now the method is suitable for the preparation of ethers having primary alkyl groups only. अब ये मेथड सुटेबल है ethers बनाने के लिए वहाँ जहाँ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स हो. एंड द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी कैप्ट लो. तो आपका अल्काइल ग्रुप अनहिंडर्ड होना चाहिए, टेम्परेचर लो होगा तभी आपका ईथर बनेगा. Otherwise the reaction favors the formation of alkene, and the reaction follows SN1 pathway when the alcohol is secondary or the tertiary, about you which learn in higher classes. However, the dehydration of secondary and the tertiary alcohols to give corresponding ether is unsuccessful as elimination competes over the substitution, and as a consequence alkenes are easily formed. It is saying कि secondary tertiary भी अगर बनाएंगे ether तो वो SN1 pathway फॉलो करेंगे, बट ये चीज़ अब बाहर क्लासेस में पढ़ेंगे. लेकिन अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं सेकेंडरी और टर्जरी की
और हम चाहते हैं कि ईथर बने उस केस में, तो थोड़ा अनसक्सेसफुल हो जाती है ये चीज़, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो कम्पीट कर जाती है विद सब्स्टिट्यूशन, मतलब एलिमिनेशन जीत जाती है सब्स्टिट्यूशन से, तो कॉन्सिक्वेंस आपका क्या होता है कि एल्किन बन जाती है एंड इट इज़ ईजिली फॉर्म बेसिकली. फाइन. So this is the basically the mechanism of nucleophilic substitution reaction, which is SN2, which because of this mechanism there is a formation of ether. But what is the main difference between the formation of ether and the alkene? The difference is of the temperature and the basically the alcohol, whether it is primary, secondary or the tertiary. If alcohol is primary and temperature is kept low, there will be the formation of ether only. Fine. Now here is the mechanism of ether with Kong HI. Starts with the protonation of ether molecule. So first step is the protonation of ether molecule. See, this oxygen is getting protonated by the H positive and I negative is releasing. Fine. And the reaction takes place with HBr or HI because these reagents are sufficiently acidic. In the next step, what will happen? Because iodine is a good nucleophile and it attacks the least substituted carbon of oxonium ion formed in step 1 and displaces an alcohol molecule by SN2 mechanism. So in the cleavage of mixed ether with two different alkyl groups, the alcohol and the alkyl iodide form depend upon the nature of alkyl groups. When primary or secondary alkyl groups are present, it is the lower alkyl group that forms alkyl iodide. And in the cleavage of mixed ether with two different alkyl groups, the alcohol and the alkyl iodide form depend upon the nature of alkyl groups. When primary or secondary alkyl groups are present, it is the lower alkyl group that forms alkyl iodide. That is same repeat हो गया है. तो इसका मतलब ये है कि बेटा देखो, अगर यहाँ पे यू कैन सी CH3OH पॉजिटिव CH2CH3, तो अब I नेगेटिव कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना. तो I नेगेटिव आपका जो लेस नंबर कार्बन की चेंज होगी उस पर अटैक करेगा और आपका OH निकल जाएगा 2 कार्बन चेन के साथ. फाइन. एंड व्हेन HI is in the axis and reaction is carried out at high temperature, ethanol reacts with the another molecule of HI and it converted into ethyl iodide. और अगर आप HI को एक्सेस में डाल देंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का, दैट इज इथेनॉल, वो भी क्या कर जाएगा, HI से रिएक्ट करके आपको इथाइल आयोडाइड दे देगा. ठीक है. सो हाउ एवर व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्जरी ग्रुप, द हैलाइड फॉर्म्ड इज ऑफ टर्जरी हैलाइड. तो देखो अब यहाँ पे टर्जरी है आपका और HI आप यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोटोनेशन हुई यहाँ पे इस तरीके से H लग गया. तो अब इस केस में आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन आपका बन रहा है. तो यानी कि अगर आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, सी अगर बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो टर्जरी कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा. तो विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इट इज़ द टर्जरी. तो बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से होगी, CO से, तो CH3OH बनेगा आपका और दूसरा आपका टर्जरी आपका हैलाइड बनेगा. ठीक है. सो it is because in this step 2 of the reaction, the departure of living group creates a more stable carbocation and the reaction follows the SN1 mechanism. So in case of anisole, now methyl phenyl oxonium ion is formed by the protonation of ether and the bond between OCH is weaker than the bond between C6H5 because the carbon of phenyl group is sp2 hybridized and there is a partial double bond character. अब it is saying कि अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है in the case of anisole के बीच में, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ पे आपका this bond will break because this bond is now stronger bond ऑब्वियसली. और अगर यहाँ से टूट गया तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा विच इज़ नॉट स्टेबल. फाइन. तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो फिनॉक्साइड बनेगा, दैट इज स्टेबल. और अगर यहाँ से टूटता है तो इस केस में आपका फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा विच इज़ नॉट स्टेबल. सो दैट इज़ वाई जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ से होगा. तो बॉन्ड ब्रेकेज उसी हिसाब से होगा जहाँ से आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो. फाइन. तो अब नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये आपका एक टर्जरी है and this is the slow reaction. आपका एक कार्बोकेटायन बना और ये बन गया. now this कार्बोकेटायन is reacting with the I negative and forming the tertiary alkyl iodide. now it is saying therefore the attack by I negative ion breaks OCH3 bond to form CH3I phenol. Do not further to give halides, do not react further to give halides because the sp2 hybridized carbon of phenol cannot undergo nucleophilic substitution reaction needed for conversion to the halide. अब अगर आप एक्सेस में HI डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि फिनोल वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में, क्योंकि फिनोल आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है OH ग्रुप, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वो आपके हैलाइड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं जाएगा. ठीक है. ये एग्जाम्पल गिवन है, आपको देखेंगे बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है. Now next is the electrophilic substitution reaction. The alkoxy group is para, obviously ortho para directing because ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आपके नेगेटिव चार्जेस रह रहे हैं. सो दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो आपका जो अपकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ पे आके लगेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे. सो यू कैन सी दिस इज द हैलोजेनेशन रिएक्शन. अगर आप एनिसोल विच इज़ द फिनाइल ईथर, अगर आप इसकी रिएक्शन कर दें ब्रोमीन इन द इथेनोइक एसिड, तो यू कैन सी ब्रोमीन आपका या तो पैरा पे लगेगा या फिर ऑर्थो पे लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन.
फिल्टरकार्फ रिएक्शन में अगर आप इसकी अल्काइलेशन करें एनहाइड्रस ClCl3 और CH2 की प्रेजेंस में, तो आपका CH3 या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। तो या तो आपका बनेगा 2-methoxytoluene या 4-methoxytoluene। नाउ नेक्स्ट, अगर आप इसकी एनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में एसाइलेशन रिएक्शन करें CH3COCl डाल के, तो आपका COCH3 पार्ट या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे। Next is the nitration now. This is the last reaction of ether and there is the completion of the chapter. Anisole की रिएक्शन अगर आप कॉन्क H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में कराते हैं दोनों का मिक्सचर लेके, तो आपको नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा हुआ मिलेगा। So this is the electrophilic reactions of the electrophilic substitution reactions of the ethers which have the phenol which has a phenyl group, or the anisole we are studying. Fine.